Instagram in less than a month. Yes guys, in today's video we are going to discuss कि आपको आपके पहले 1000 followers कैसे gain करने. I'm not saying you that gaining the 1000 followers in a week is not possible. Of course it's possible. But when you have just started or you have a new account, तो जो पहले 1000 फॉलोअर्स होते हैं उनको गेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट ऑब्वियस ही बात है, जब टाइम के साथ आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं तो मे बी नेक्स्ट मंथ आप 3000 फॉलोअर्स गेन करोगे. सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द यूजर्स. इफ यू आर द समवन हु हैव क्रिएटेड अ न्यू अकाउंट or you are the someone who have not achieved the 1000 milestone, so this is the video for you guys. Yes, in today's video I'm going to give you the 9 amazing strategies that has worked wonderfully for me to gain 1k followers in less than a month. Honestly, I'll tell you that I gained 1k followers in almost 26 to 27 days, which is less than a month, right? So आज की वीडियो में मैं आपको सारी strategies शेयर करने वाली हूँ. तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि जस्ट लाइक आप अपना पेन और पेपर लेके बैठो एंड नोट डाउन ऑल दी स्ट्रैटेजीज, बिकॉज सुनने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज. सो डू नोट डाउन एंड प्लीज गाइज इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना. All the 9 strategies are very amazing and don't miss even the one. So if you are the someone, so do watch the video till end. So let's get started. So hello everyone, welcome to my channel Digital Shivani. और आज की वीडियो में we are going to discuss that how to gain your first 1000 followers in less than a month. Okay, so now the tip number 1 is choose your niche, right? आपको ऐसा नहीं है that you have created an account and you will create the content on fitness, on business, on marketing, on gym and everything. No, you are going to confuse your audience. So first of all, you should have a particular niche कि आपको कंटेंट किस इंडस्ट्री के ऊपर बनाना है. सो डोंट वरी, आई हैव क्रिएटेड वन वीडियो. आपको ऊपर आई बटन में पॉपअप होके एक वीडियो आएगा दैट हाउ टू चूज द प्रॉफिटेबल नीश फॉर योर इंस्टाग्राम. सो इफ यू रियली वांटेड टू नो, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हो और आपको इजीली पता लग जाएगा दैट हाउ टू सेलेक्ट अ प्रॉफिटेबल नीश फॉर योर इंस्टाग्राम. ओके, सो नाउ यू विल से मी, ओके शिवानी, नाउ वी हैव सेलेक्टेड आवर नीश, व्हाट्स नेक्स्ट? The next is your profile optimization. Obviously guys, I always say you, देखते जैसे if you have started a shop, right? जिस तरीके से you decorate your shop, अगर आपकी मान लेते हैं क्लोथिंग की शॉप है, आप उसको डेकोरेट करते हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी शॉप के पास अट्रैक्ट कर सको. तो इंस्टाग्राम भी आपके लिए एक तरीके की शॉप है, राइट? एंड व्हेन अ पर्सन कम्स टू योर प्रोफाइल, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग अ यूजर सी? That is your bio. कि आपकी बायो कितनी प्रोफेशनल है. Don't write anything in the bio. People write any 3-4 sentences, your name and from where you are, your age. Nobody cares that you are from where, what is your age. You have to tell to the people that who you are, how you are going to help them. So you have to create a perfect Instagram bio. So don't worry, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है that how to create a perfect Instagram bio in simple 4 steps. Guys, it will hardly take you 10 minutes एक perfect bio बनाने के लिए. तो आपको आई बटन पे पॉपअप होके एक वीडियो आएगा. So do watch the video that how to create a perfect Instagram bio in simple 4 steps, right? Now you will say कि okay, मैंने अपनी शॉप भी सजा ली है, मैंने अपना टॉपिक भी चूज कर लिया है, अब यूजर्स मेरी प्रोफाइल पे आएंगे, राइट? आपको उनको आपकी प्रोफाइल बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी. सो व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर कंटेंट. इफ आई विल से यू कि आपकी शॉप पे यूजर तो आ गया, कस्टमर तो आ गया, आपने अपनी शॉप के अंदर कुछ भी नहीं रखा है. अगर आपकी क्लोथिंग की शॉप है, देयर आर नो क्लोथ्स इनसाइड योर शॉप. So the user is going to go back from your shop and they are never going to come. So in the same way, आपकी प्रोफाइल, आपकी बायो देख के यूजर आपकी प्रोफाइल पे आ तो गया. So what is the next thing they are going to see? The high quality content. Yes guys, so you have to create a very good quality content. और आपको कैसे पता लगेगा that what is the high quality content of your industry? It is simple. Run experiment.
नोबडी इज एक्सपर्ट राइट. जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी ऑडियंस को किस तरह का कंटेंट पसंद है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. आप कंटेंट बनाना शुरू करो. आपकी ऑडियंस चाहे कोई भी रिएक्शन दे, बट रिएक्शन तो देगी. मे बी वो उसको लाइक करेगी, डिसलाइक करेगी. सो विद द टाइम यू विल गेट टू नो दैट व्हाट योर ऑडियंस लव. एंड ऑब्वियसली आप अपने इनसाइट्स की हेल्प से चेक कर सकते हो दैट व्हाट इज द मैक्सिमम, like which are the posts on which you are getting the maximum reach, maximum likes. So you will get an idea that yes, your audience loves this type of content. So you will have to create more that type of content which your audience is loving, right? Because I always say you, the audience is everything. अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए काम करोगे तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है. सो ऑलवेज डू द थिंग, create content only for your audience. So always try to create the content which is problem solving. So this is my third strategy, the high quality content. So now you will say me, now what's the tip number 4? I'll say that if the content is the king, so consistency is the queen, guys. Yes, if you will say कि okay, आज मैं एक content बना लेता हूँ और मुझे followers आते रहेंगे. No, you have to create content every day. I'm not saying don't run behind the numbers. Some people are creating 5 posts, 7 posts in a day. That is not like, don't run behind कि आप कुछ 7 पोस्ट बनाने, 8 पोस्ट बनाने हैं. भले ही आप एक पोस्ट बनाओ, लेकिन आप हर रोज बनाओ. क्यों? Because आप do run an experiment. When you will create a content for all the 15 days, तो आगे आने वाले दिनों में the people must be having a curiosity in their mind that okay, like Digital Shivani is posting daily at 6 p.m. So now what is she's going to post today, right? So this is the power of consistency. Why? Because guys, लोगों को एक दिल में ये हो जाता है that okay, I am getting a lot of value, a lot of tips and hacks every day from this account, so they will never unfollow you. और अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप 15 दिन कोई कंटेंट मत डाल के देखना, एंड यू कैन एक्चुअली सी दी अनफॉलोअर्स रेट. लोग आपको धीरे धीरे अनफॉलो करना शुरू करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट फ्रेंड्स ओवर हियर, राइट? आप यहाँ पे एक क्रिएटर हो, आप एक कनेक्शन बिल्ड करने आए हो, लेकिन आप उनको वैल्यू देने आए हो. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव देम द वैल्यू, they will unfollow you. So this is the harsh reality, but you have to follow that. You have to be very consistent, and not on Instagram. अगर आप consistent हो, so you can win the game किसी भी platform पे. So this was my fourth strategy, that be consistent whatever you do, and according to me, one post in a day is enough. So now let's move towards the strategy number 5, that is hashtag game, right? So guys, starting में hashtags use करना is very very important. People don't use hashtags, so I will recommend you that use 30 hashtags in every post. So there are 2 types of hashtags, the king's hashtags and the soldier hashtags. So now what is the difference? Don't get confused. King's hashtags यानी कि जिसपे बहुत ज़्यादा competition होता है, like hashtag digital marketing, hashtag YouTube, hashtag SEO, जो बहुत ही highly competitive है. एंड सोल्जर हैशटैग्स, ये वो हैशटैग्स होते हैं जिन पे थोड़ा कम कंपटीशन है. यानी कि जब आप इनको हैशटैग्स को थोड़ा लंबा कर देते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स इन 2020, यूट्यूब मार्केटिंग टिप्स फॉर 2020 या यूट्यूब मार्केटिंग टिप्स फॉर बिगनर्स. सो दीज आर दी सोल्जर हैशटैग्स. सो मैं आपको हैशटैग पे बस एक ही रिकमेंडेशन दूंगी कि स्टार्टिंग में जब आपका एक नया अकाउंट है, टू ट्राई टू यूज दी सोल्जर हैशटैग्स. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. आप किंग्स हैशटैग बहुत कम यूज करो, हार्डली 4 to 5. ज्यादा से ज्यादा सोल्जर हैशटैग्स यूज करो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. So this was my tip number 5, that go for the hashtag strategy. Now the tip number 6 is reels and stories. Guys, this is a game changer strategy. If you are not using it, you are missing a lot of things, right? So I will recommend you, कम से कम आप दिन में 5 से 6 स्टोरीज डालो. स्टोरीज बेस्ट होती है अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए. स्टोरीज कैन बी एनीथिंग. यू कैन गो फॉर पोल्स, आप Q&A कर सकते हो, आप अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकते हो, आप अपनी फेस की फोटो डाल सकते हो, मॉर्निंग मैसेजेस, नाइट मैसेजेस, योर टीम, आप जो काम कर रहे हो वो शेयर कर सकते हो. तो आप एक्चुअली में स्टोरीज के साथ अपनी ऑडियंस के साथ एक
पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट. और आपके जो पोस्ट हैं आप अपने पोस्ट को अपनी स्टोरीज पे भी प्रमोट कर सकते हो, राइट. सो स्टोरीज आर द ग्रेट वे. एंड नाउ आप सबको पता है जो कि नया फीचर आया है, दैट इज द रील्स फीचर. दैट इज द मोस्ट ट्रेंडी थिंग ऑन द इंस्टाग्राम, राइट. बहुत सारे लोग रील्स फीचर यूज कर रहे हैं और आपको यूज करना चाहिए. व्हाई? Because it is the new feature. Because whenever any platform comes up with a new feature, in order to make it popular, वो आपको maximum reach देता है. तो अभी अगर आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा रीच किस पे है इंस्टाग्राम पे, तो रील्स में बहुत ज्यादा रीच है. तो आपको एक्चुअली में रील्स यूज करनी चाहिए. आप कम से कम दिन में एक रील डालो और इफ पॉसिबल आप कम से कम 5 स्टोरीज शेयर करो 2-2 घंटे के गैप में. लाइक आप 2 आवर्स का गैप रख सकते हो. एवरी 2 to 3 आवर्स के बाद आप एक स्टोरी शेयर करो ताकि आप पूरे दिन में अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहोगे. So this is the strategy for the stories and the reels. So let's move towards the strategy number 7. That is your commenting game. अब लोग पूछते हैं कि कमेंट करने से क्या होता है. मैं आपको बहुत ही छोटी सी 2 स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी अंडर द कमेंटिंग गेम. पहला क्या है, फाइंड आउट द टॉप कॉम्पिटिटर्स. आपने क्या करना है, आपके जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं आपको सिंपली उनके पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं. व्हाट यू हैव टू डू, आप जैसे मान लेते हैं कि अगर हम डिजिटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं डिजिटल प्रतीक की प्रोफाइल पे गई और मैंने उनकी पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर दी. इसका मतलब व्हेनेवर ही इज गोइंग टू पोस्ट आई विल गेट अ नोटिफिकेशन. और जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आएगी मुझे उनके पोस्ट को ओपन करना है एंड आई हैव टू लीव अ वेरी जेन्युइन कमेंट. Guys, don't be promotional. Please follow my account or please check out my post or everything, all these bullshit. You don't have to do this. You just have to leave a very genuine comment, a very informative comment that what you feel about that post. अगर मान लेते हैं कि उन्होंने पोस्ट किया है top 5 tips about the YouTube marketing, तो ऐसी कोई एक टिप है जो आप अपने कमेंट के थ्रू ऐड ऑन कर सकते हो, या कोई भी ऐसा वैल्यू बॉम्ब आप दे सकते हो, या फिर उस पोस्ट के बारे में 5 टिप्स वो आपको कैसे हेल्प करेगी, आप बहुत ही जेन्युइन वे में वो कमेंट करो. उसका बेनिफिट ये होता है जब भी आप किसी पोस्ट पे कमेंट करते हो और बहुत पहले कमेंट करते हो, राइट, उसी वक्त कमेंट करते हो, तो जो आने वाले विजिटर्स उस पे कमेंट्स करते हैं वो बहुत चांसेस होंगे कि वो आपका कमेंट देखेंगे दैट हु इज दिस पर्सन हु हैज गिवन सच गुड वैल्यू बॉम्ब इन द कमेंट. मे बी आपकी टिप और ट्रिक उन्हें अच्छी लगे, मे बी आपकी प्रोफाइल डीपी उन्हें अट्रैक्ट करे और वो आपकी प्रोफाइल ओपन करे और वो आपके एक फॉलोअर भी बन जाए. So this is the big circle, but yes, it works, right? तो ऐसे ही आप अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स के पोस्ट पे भी कमेंट्स कर सकते हैं और आप औरों के पोस्ट पे भी कमेंट्स कर सकते हैं. तो दिस स्ट्रैटेजी रियली वर्क्स अ लॉट. और सेकंड स्ट्रैटेजी अंडर द कमेंटिंग गेम में आपको शेयर करूंगी that you have to solve the problems of the commenters. आपने देखा होगा जो बहुत ही टॉप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स आते हैं. People keep asking that how to do this, how to do that, and obviously they are getting thousands of comments. It is not possible to solve each and everyone's problem, right? So what you have to do? So this is the opportunity for you guys. You have to solve the problems, right? मैंने सच में ये किया है and it really works. What you have to do, जैसे मान लेते हैं कोई भी कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, एंड उस इन्फ्लुएंसर के पास टाइम नहीं है कि वो अपने 1000 कमेंट्स में से उसको आंसर करे, बट यू आर द स्टार्टर, यू कैन डू दिस. आप सिंपली उनको हेल्प करो. आप सच में ये ट्राई करके देखना और आपको सच में डीएम आएगा. दे विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज saying you thank you for solving your problem. सच में मैंने बहुत लोगों की genuinely हेल्प करी है. No promotional nothing. उनकी जो क्वेश्चन था मैंने उसका आंसर देने की क्वेश्चन किया है, आंसर देने का ट्राई किया है. The people send me a DM that thank you so much for helping us and they even give a follow back if they like my profile, right? So it is a very great strategy. तो कमेंटिंग में आपको 2 चीजें करनी है. कॉम्पिटिटर्स के पोस्ट पे कमेंट करना है और दूसरा कमेंट्स में जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं उनको आपको सॉल्व करना है ताकि वो भी आपकी फैमिली में आपके फॉलोअर्स की लिस्ट में ऐड हो सके. सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग स्ट्रैटेजी गाइस. So now let's move towards the strategy number 8, that is the DM strategy. Now what is a DM strategy? DM strategy is direct message strategy. बहुत लोग कहते हैं कि आपको DM यूज नहीं करना चाहिए, but why not? According to me, if you are new to the market, आप अपनी नई शॉप खोलते हो तो आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप बैनर्स लगवाते हो, आप लोगों को फ्री ट्रायल्स देते हो that please try our product, please come to our shop, right? So why can't we do this on Instagram? Of course we can do this. We just have to send a very genuine and a very good message to the people. Now don't do this
कॉपी पेस्ट अ सेम मैसेज टू एवरीवन, आपने 100 लोगों को एक मैसेज भेज दिया. Don't do this. Be very much genuine. For example, if you're talking to someone with the name of Priya, right? So you have to use the message like start the message with the customized name. That hello Priya, that I really found your profile very good. I was just scrolling my feed and I found your profile that you are doing an amazing work. That it was just an appreciation message. तो आप लोगों को ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हो. सेकेंड चीज, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो. That hello Priya, that I'm Shivani, I'm a digital marketing strategist and I'm new to the market. I have just created my page, so it would be a very kind of you that if you take 3 or 4 minutes to check out my page and give me some valuable suggestions or feedback on my profile as I have just started. So yes, this is the invitation you are giving to the people, and there will be 50 to 20% chances that people will come to your profile. Even वो आपको feedback ही देंगे, लेकिन आप उनके notice में आ जाओगे कि ठीक है, ये एक नया बंदा market में आया है. So this is a very great strategy. तो आप invitations भेज सकते हो, आप लोगों को appreciation message भेज सकते हो, या आप लोगों को suggestion DMs भी भेज सकते हो. That hey Priya, I really found your profile good. I would like to just add 2-3 suggestions to your profile that may help you to double your reach of followers. और आप simply वो 2-3 suggestions को लिख दो. कोई फॉलो नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी है. बहुत ही जेन्युइन वे में आपको DMs को यूज करना है, और DM एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है to grow your followers. So this was my strategy number 8, that is the DM strategy. So now the last strategy is the shout out strategy. So now what is shout out? आपको पता है जब आपके competitors या influencers आपकी प्रोफाइल या आपके पोस्ट को अपने स्टोरी पे शेयर करते हैं, so that is a shout out, right? So I'll not say you कि आप बहुत सारे लोगों को like irritate करो that give me a shout out, give me a shout out. No, आप अपने कंटेंट पे फोकस करो. अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपको शाउट आउट जरूर मिलेंगे, लेकिन आप जेन्युइनली कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो that please I'm new to the market, so I really need a help that if you can give me a shout out. So don't irritate them. उनके पीछे नहीं पड़ना, आपको बहुत ही genuine way में रिक्वेस्ट करनी है. Obviously shout out से बहुत ज़्यादा chances होते हैं that you will get many followers, right? So this was the strategy number 9 that gives a shout out. So here's a very small bonus tip for you that you can also promote your profile to the other social media channels. जैसे कि अगर आपका Facebook account है, आपका WhatsApp है, आप Snapchat पे हो, आप LinkedIn पे हो, तो आप वहाँ पे भी अपने प्रोफाइल को प्रमोट कर सकते हो. So this was simply a small tip, a bonus tip from my side. अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो आपको एक बोनस टिप तो बनता है. So thank you so much for watching this video till end, and I hope आप अपने 1K फॉलोअर्स बहुत जल्दी अचीव कर लोगे, एंड वी विल ग्रो टुगेदर, राइट? सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में देयर इज द लिंक ऑफ माय इंस्टाग्राम अकाउंट. यू कैन चेक आउट माय प्रोफाइल एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन फॉलो मी, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज. सो अगेन मैं एक बहुत अमेजिंग नई वीडियोस के साथ आई विल कीप कमिंग. So do like the video guys, it's a great motivation for me. जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है to keep coming with such videos. So do like my video and do subscribe to my channel, and we will meet in the next video. And I will end up this video with a very positive note that get up and start working on your dreams. Let's grow together. Bye bye guys, we will meet in the next video.